I am Gun Prasad. Welcome to my channel Biogen. In this video, I am describing about the first lesson of class 9th Bioscience, that is fundamental unit of life. What is the fundamental unit of life? Cell is the fundamental unit of life. So let us see what is cell, what are the components of cells, what are the functions of components of the cells. So let us see about the cell. All living beings, all living organisms are cellular in nature. They are made up of cell or cells. तो सब जितने भी सजीव प्राणी होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं. कुछ some are made up of only one cells and some are made up of more than one cell. So those organisms which are made up of only one cells are called unicellular organisms. They are generally macroscopic organisms. Why? They cannot be observed by naked eye. They can be observed by under high powerful macroscope. Protozoan protists like amoeba, paramecium, yeast cell and bacteria, these are unicellular organisms. Those organisms which are made up of many cells, more than one cells, are called multicellular organisms. They are also called metazoans. जैसे higher plants, higher animals, these are मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म. मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. That branch of the biology deals with the study of cells in all aspects of structure and function is called cytology or cell biology. तो what is cytology? साइटोलॉजी क्या है? तो साइटोलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं. Let us see definition of cell. A cell may be defined as a cell is the fundamental, smallest structural and functional unit of life. सेल क्या है? What is cell? सेल क्या है? सेल जीव शरीर का सबसे छोटी रचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब क्रियात्मक इकाई होती है. All the living beings are made up of cells. So cells are a structural and functional unit of life. Let us see why a cell is said to be smallest. अब हम लोग ये देखते हैं सेल को स्मॉलेस्ट क्यों कहा गया, why a cell said to be structural, सेल को स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया, and why a cell is said to be functional, सेल को फंक्शनल क्यों कहा गया. तो स्मॉलेस्ट, a cell is very small. It can not be observed by naked eyes. It can be observed under high powerful microscope. Therefore, a cell is said to be a smallest. तो सेल बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते. इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, वो भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है. इसलिए सेल को हम स्मॉलेस्ट कहते हैं. Let us see why a cell is said to be structural. Cells aggregate to form a tissue. Tissue aggregate to form an organ. Organs aggregate to form an organ system, and organ system aggregate to form an individual. So since tissue, organ and organ systems are derived from a single cell, so cell is said to be a structure. तो हम जानते हैं कि सेल जो है एग्रीगेट करके टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू एग्रीगेट करके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तब एक इंडिविजुअल जीव शरीर का निर्माण होता है. तो टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ये सभी कहाँ से उत्पन्न हुए? सब सेल से उत्पन्न होते. इसका मतलब सेल में स्ट्रक्चर करने की क्षमता है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल कहा गया है. See why a cell is said to be functional. A single cell performs all the basal metabolic activities those are performed by a multicellular organism. मतलब एक सिंगल सेल जो होता है वो सभी लाइफ प्रोसेस को कर सकता है, सारे बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कर सकता है जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं. Thus all life functions of an organism reside in cell. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी जैव प्रक्रम होते हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वह सब एक सिंगल सेल में निहित होते हैं. सो ए सेल इज सेड टू बी फंक्शनल, इसलिए सेल को हम फंक्शनल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं. We know that unicellular forms like amoeba and bacteria can perform all the activities of the life with their single cell structure. तो जितने भी यूनिसेलुलर फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो अमीबा हो, बैक्टीरिया हो, ये सब सिंगल सेल्स के बने होते हैं, और ये अपने जीवन के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वह सब एक सिंगल सेल के द्वारा ही संपन्न करते हैं. अगर सिंगल सेल में जीवन के सभी क्रियाओं को करने की क्षमता नहीं होती तो शायद कोई भी एक उसकी
जीव जो है वो अस्तित्व में नहीं आते। तो चूंकि all the life activities are performed by a single cell, so a cell is said to be functional. आइए अब हम कोशिकाओं के इतिहास के बारे में जानते हैं। In 1665, an English scientist, Robert Hooke, examined a thin slice of cork of a bark of a tree under his self-designed microscope. So it was Robert Hooke. No, he was a scientist. Actually, he was a botanist. He designed a compound microscope. He examined a thin slice of cork. Cork, it is a part of bark of a tree. Under his self-designed compound microscope, he observed many small hollow compartments under his crude microscope. He used the term for these hollow compartments celluli or cells. So thus, the word cell was first coined by Robert Hooke. तो रॉबर्ट हुक जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, खासकर एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया 1665 में, और अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप में उसने कॉर्क के महीन टुकड़े की जांच की। जांच के दौरान उनको माइक्रोस्कोप में अनेक खाली खाली कोठी जैसी रचनाएं दिखाई दी। तो उन्होंने इस खाली कोठी जैसी रचनाओं का नाम क्या रखा? सेल रखा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सेल शब्द को सबसे पहले व्यवहार में लाने वाला वैज्ञानिक कौन था? रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक एक्सप्लेन्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन एन बुक नेमली माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने जो भी ऑब्जर्वेशन देखा था उसका व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन अपनी पुस्तक, अपना बुक माइक्रोग्राफिया में किया है। ही एक्चुअली ऑब्जर्व द रिजिड सेल वॉल ऑफ द डेड सेल ऑफ ए कॉर्क। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के डेड सेल्स को देखा था, रॉबर्ट हुक लिविंग सेल्स को नहीं देखे थे। द टर्म सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेला व्हिच मीन्स लैटिन रूम। तो वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेला व्हिच मीन्स लिटिल रूम। मतलब सेल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द सेला से निकला है, जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। In 1674, a Dutch scientist, Anton von Leeuwenhoek, improved the lens system in microscope. He observed many living cells like bacteria, herbaceous sperm, and protozoans under his self-designed microscope. तो 1674 में एक डच साइंटिस्ट जो कहते हैं, जो हॉलैंड के रहने वाले होते हैं, नीदरलैंड के रहने वाले होते हैं, उनको डच कहा जाता है। तो डच साइंटिस्ट जिनका नाम एंटोन वॉन लीeuwenhoek था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने माइक्रोस्कोप में लेंस सिस्टम को और इम्प्रूव किया और उसको विकसित किया, जिसके कारण लेंस माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर था वो काफी बढ़ गया। तो अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में एंटन वॉन लीeuwenhoek ने बहुत सारे लिविंग सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया सेल, रेड ब्लड सेल्स जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, स्पर्म सेल्स और प्रोटोजोअन सेल्स को देखा। तो 10 लिविंग सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो इस प्रकार जीवित कोशिका को, जीवित सेल्स को देखने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। In 1682, N. Grew proposed cell concept which states that a cell is unit of structure of organism. तो 1682 में N. Grew नाम का एक वैज्ञानिक ने सेल कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के संरचना का, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है। In 1831, a Scottish botanist Robert Brown discovered the nucleus in the root cell of the orchid plant. 1831 में स्कॉटलैंड के रहने वाले एक बोटानिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, उन्होंने ऑर्किड प्लांट के रूट के सेल में न्यूक्लियस को देखा। तो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। In 1839, J. Purkinje gave the term protoplasm for jelly-like semi-solid living substance of the cell. तो इस सेल contains a semi-solid jelly-like substance. This substance is coined by protoplasm by J.E. Purkinje. तो J.E. Purkinje नामक एक वैज्ञानिक ने जीव सेल के अंदर एक विशेष प्रकार का लसलसा चिपचिपा अर्ध तरल सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस को देखा और J.E. Purkinje ने उसको, उस जीवित पदार्थ को नाम क्या रखा? प्रोटोप्लाज्म। तो 10 प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय J.E. Purkinje।
In 1838, a German botanist M.J. Schleiden discovered the plant cell and gave an idea about it. तो plant cell is discovered by M.J. Schleiden. तो M.J. Schleiden नामक एक वैज्ञानिक था जो जर्मनी के रहने वाले थे, एक बोटानिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले प्लांट सेल को खोज किया और प्लांट सेल के बारे में बहुत सारी बातें बतलाई। In 1839, a German zoologist Theodor Schwann discovered the animal cell and gave an idea about it. 1839 में जर्मन का ही एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम थियोडोर श्वान था। उन्होंने क्या किया, एनिमल सेल को डिस्कवर किया, एनिमल सेल को खोज किया और उसके बारे में बहुत सारी बातें बतलाई। तो both Schleiden and Schwann established cell theory and postulated that the cell is the basic unit of life. तो Schleiden और Schwann ने जो बातें बतलाई थी उन सभी बातों को मिलाकर एक सेल के संबंध में एक सिद्धांत बनाया गया जिसको हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी कहता है कि सेल जो है जीवन का सबसे छोटा आधारभूत इकाई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल थ्योरी इज डिस्कवर्ड बाय Schleiden and Schwann. The important features of the cell theory. The important features of cell theory are: all organisms are composed of one or more cells. A cell is the basic structural and functional unit of life. As you know, cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. So, what is the main features of the cell theory? So, cell theory stated that all organisms are composed of one or more cells. जैसा कि आप जानते हैं कि सेल थ्योरी को किसने दिया? Schleiden और Schwann ने। तो सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी कहता है कि सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक सेल से बना हुआ होता है। ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल थ्योरी का दूसरी बात क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेल थ्योरी इज ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वह लाइफ का सबसे छोटा बेसिक आधारभूत स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। In 1855, a German pathologist, Rudolf Virchow, added a third principle to the cell theory. He proposed the theory of lineage, which is stated omnis cellula e cellula. 1855 में एक जर्मनी का ही रहने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम रुडोल्फ विर्चाव था। उन्होंने सेल थ्योरी में थर्ड प्रिंसिपल को ऐड किया। उन्होंने थ्योरी ऑफ लिनिएज, कोशिका विभाजन के सिद्धांत के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा omnicellula cellula. What is the meaning of omnicellula cellula? Omnicellula cellula means all cells arise from pre-existing cells. मतलब सभी कोई भी सेल की उत्पत्ति पूर्व मौजूद सेल में विभाजन के फलस्वरूप होती है। तो रुडोल्फ विर्चॉव ने यही कहा कि all cells arise from pre-existing cells. Later discoveries led the modification of the cell theory. तो रुडोल्फ विर्चाव के इस स्टेटमेंट को सेल थ्योरी में ऐड कर दिया गया जिसके कारण सेल थ्योरी जो है और जनरलाइज हुआ, मॉडर्नाइज हुआ। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी इज टर्म्ड एज सेल प्रिंसिपल और मॉडर्न सेल थ्योरी। ये जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी हुआ उस मॉडिफाइड सेल थ्योरी को सेल प्रिंसिपल या मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जाना गया। तो Cell theory was proposed by Schleiden and Schwann and modernized or generalized by Rudolf Virchow. See the main points of modern cell theory. So, as you know, modern cell theory was proposed by Schleiden, Schwann and Virchow. So, what are the main points of modern cell theory? इसे हम अब देखते हैं। All living organisms are composed of cell or cell products. A cell is the fundamental, smallest structural and functional unit of life. तो all living organisms are made up of cell and cell products. सभी जीवों का शरीर सेल और सेल प्रोडक्ट्स का बना हुआ होता है। A cell is the fundamental, smallest structural and functional unit of life. मतलब सेल जो होता है वो जीवन का सबसे छोटी स्ट्रक्चरल, रचनात्मक एंड फंक्शनल क्रियात्मक इकाई होती है। सेकेंड फीचर्स, all living cells arise from pre-existing cells. तो सभी सेल्स जो होते हैं पूर्व मौजूद सेल्स में डिवीजन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। थर्ड फीचर्स, ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो सभी सेल्स जो होते हैं वह बेसिकली जो है वह केमिकल कंपोजिशन में और मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक जैसे होते हैं।
Next picture is the function of an organism as a whole is the result of the activities and interaction of the constituent cell. तो जीव का जो बॉडी है वो बहुत सारे जो सेल्स के बने होते हैं। तो शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स के आपसी इंटरेक्शन और एक्टिविटीज, उनकी क्रियाएं का परिणाम ही उस जीव का एक कार्य होता है, उस ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शन होता है। Next picture, a cell is the mass of protoplasm containing a nucleus and bonded by a cell membrane. In many cases, cell wall also. तो सेल जो है प्रोटोप्लाज्म का एक टुकड़ा है जो अपने चारों ओर से सेल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, किसी किसी में सेल वॉल से भी घिरा होता है और उसके भीतर एक न्यूक्लियस होता है। तो ये these are the main features of the modern cell theory. वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरसेस जो होते हैं वह सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, सेल थ्योरी की बात को वह नहीं मानते हैं। In 1932, two German scientists, M. Knoll and Iruska, designed the electron microscope, which was employed to study the ultrastructure of cell and various cell organs in 1940. Magnification of electron microscope is 1 lakh to 5 lakhs. तो दो जर्मन साइंटिस्ट हैं जिसका नाम एम नॉल और इरस्का था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया 1932 में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय एम नॉल एंड इरस्का इन 1932, बट दीज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज एम्प्लॉयड टू स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस सेल ऑर्गन्स इन 1940। तो बना था 1932 में, लेकिन वास्तविक में उससे सेल और सेल के ऑर्गन्स का अध्ययन की शुरुआत जो है 1940 में हुई। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करना कब शुरू किया? 1940 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 1 लाख टू 5 लाख, मतलब किसी वस्तु को 1 लाख से 5 लाख गुना बड़ा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकता है।